بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد اللہ بن سبا سرزمین عرب سے کفر و شرک کے اندھیرے چھٹ چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما جیسے نامور سپہ سالاروں کی قیادت میں اسلام کے دلیر فرزندوں نے ایران میں کسری کے ایوان اور شام میں قیصر کے اقتدار کو قدموں تلے روند دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے 2.5 سالہ دور خلافت میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو کیفر کردار تک پہنچا کر رہتی دنیا کے لیے عبرت بنا دیا گیا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے خلافت اسلامیہ کی سرحدوں کو شمالی افریقہ کے ریگستان سے بحیرہ عرب کے ساحل تک وسعت دے دی تھی۔ اسلام کی اس سر بلندی سے دو قومیں خاص طور پر سیخ پا تھیں، ایک ایران کے مجوسی باشندے جو صدیوں سے آگ کی پرستش کرتے آ رہے تھے، اور دوسرے عرب سے جلاوطن کیے گئے یہودی جو نبوت اور سرداری کو اپنا موروثی حق سمجھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وارثوں سے بے انتہا بغض رکھتے تھے۔ چونکہ یہ دونوں دیکھ چکے تھے کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کے سامنے کوئی عسکری قوت حائل نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ اسلام کے خلاف زیر زمین سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ مجوسیہ میں سے ایک شخص ابو لولو فیروز نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مجوسیہ کو یقین تھا کہ حضرت عمر یہی جیسے قائد سے محرومی کے باعث اسلام کی فتوحات کی رفتار ضرور تھم جائے گی، چنانچہ ابو لولو نے ایک دن موقع پا کر حضرت عمر رضی پر، جبکہ وہ نماز فجر کی امامت کرا رہے تھے، قاتلانہ حملہ کیا۔ اس حملے کے بعد انہوں نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم 24 دوچشمیہ کو شہادت پائی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ خلیفہ بنے۔ ان کی خلافت کے دور میں بھی اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، مسلمان امن چین کی زندگی بسر کرتے، لیکن یہودی ذہن مسلمانوں کی عظیم الشان کامیابیوں سے پریشان ہو کر ان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو چکا تھا۔ یہودی لابی نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے، فرقہ واریت پھیلانے اور ان کی فتوحات کا سلسلہ روکنے کے لیے ایک سازش تیار کی۔ اس سازش کا اصل کردار عبد اللہ بن سبا یہودی کو سونپا گیا۔ اس شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کیا تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر اپنا کام کر سکے۔ اس کے ہم خیال لوگوں کی پوری ایک جماعت اس کے ساتھ تھی۔ اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کافی تعداد میں موجود تھے، اس لیے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ خاص طور پر عرب علاقوں میں یہ کام اور بھی مشکل تھا، کیونکہ وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی اولاد اور ان کے شاگردال آباد تھے، اس لیے ان لوگوں نے یہ سازش دور دراز علاقوں سے شروع کی۔ وہ ان علاقوں میں پھیل گئے جہاں کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہیں دین کا زیادہ علم نہیں تھا اور ان کے ایمان اتنے پختہ نہیں تھے۔ ایران اور عراق کا علاقہ ان کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوا، وہاں اب بھی آتش پرست لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ وہاں دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگ عبداللہ بن سبا کے عقیدت مند بن گئے۔ عراق کے شہر بصرہ کے حاکم عبد اللہ بن عامر کو ابن سبا کی حرکتوں کا علم ہوا تو انہوں نے اسے شہر سے نکال دیا، وہ بصرہ سے کوفہ پہنچ گیا۔ وہاں بھی وہ اپنی سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ کوفہ کے حاکم کو اس کی سازشوں کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی اسے نکال باہر کیا۔ اب یہ مصر پہنچا، یہاں بھی اس نے اپنے نظریات پھیلانے شروع کر دیے۔ اس نے ان لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ان پر جھوٹے الزام لگا کر لوگوں کو ان سے نفرت دلائی، لوگوں میں غلط عقیدے پھیلائے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم پر سے ان کا اعتماد ختم کرنے کی ترکیبیں اختیار کی اور مشہور کیا کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ کا حق تھا، جس پر یہ تینوں حضرات ناجائز قبضے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 35 دوچشمیہ کے آخر میں جب حج کے موسم میں مدینہ منورہ کے اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حج کے لیے مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے، عبد اللہ بن سبا کے حامیوں کی ایک بڑی جماعت مدینہ منورہ میں گھس گئی۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 17 دن تک انہیں بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد آخر 18 ذوالحجہ 35 دوچشمیہ میں شہید کر ڈالا۔
इस तरह अबद अल्लाह बिन सबा की साजिश कामयाब हो गई। मुसलमानों में फिरका बंदी का आगाज हो गया। जहां अक्सर लोग तमाम सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम से मोहब्बत करने वाले थे, वहां बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी सामने आ गए जो खुलफा राशिदीन के मुखालिफ थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ये खलीफा बने। अब अबद अल्लाह बिन सबा ने अपनी साजिश को नया रंग दिया। वो हजरत अली रजी अल्लाह की अकीदत का शोर पहले से भी ज्यादा मचाने लगा। इसके कारकुन हजरत अली रजी के सच्चे जानिसारों के हुजूम में शामिल हो गए। दोसर ये तरफ इसके एजेंटों ने ये मशहूर कर दिया कि हजरत अली रजी अल्लाह हजरत उस्मान रजी अल्लाह को कत्ल करा के खुद खिलाफत पर काबिज हो गए हैं। ये बात ज्यादातर शाम और इराक में फैलाई गई, जिसके बायस शाम में तो लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की बैत से बिल्कुल इनकार कर दिया, जबकि इराक में भी बहुत से लोग उसी तरह के शुकूक वशबहात का शिकार हो गए। इस दौरान हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हा और अल-मुमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा मुसलमानों के एक बड़े काफिले के साथ इराक के शहर बसरा पहुंच गई थीं। वहां इन्होंने हजरत उस्मान से बगावत करने वाले बहुत से फसादियों को ठिकाने लगा दिया। इस दौरान हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा भी इराक के हालात तशवीशनाक देखकर इराक के दूसरे बड़े शहर कूफा तशरीफ ले गए और सफीर भेजकर हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हा और अल-मुमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से मुज़ाकरात किए। इन हजरात ने बताया कि हमारा मुतालबा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा से फ़कत इतना है कि वो जल्द अज जल्द हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा के कातिलों को गिरफ्तार करें ताकि मुसलमानों की बेचैनी खत्म हो सके। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के सफीर ने इन्हें यकीन दिलाया कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा इस सिलसिले में हरगिज कोई कोताही नहीं करेंगे। इस पर ये सब हजरात बहुत खुश हुए और इत्तेफाक की अच्छी सूरत निकल आई। इब्न सबा की जमात के लोग ये बात सुनकर बहुत घबराए, क्योंकि इस तरह उन सब की गिरफ्तारी अमल में आई और उनसे बदला लिया जाता। चुनाचे इस मामले से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की तवज्जो हटाने के लिए फैसला किया गया कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के काफिले और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की फौज को आपस में लड़ा दिया जाए। चुनाचे रातों रात साजिश तय पा गई। रात की तारीकी में इब्न सबा के कारकुनों के एक गिरोह ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की फौज में न खड़े होकर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के काफिले पर तीर बरसा दिए। दूसरी तरफ उनके दूसरे गिरोह ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के काफिले में खड़े होकर हजरत अली देने की खैमागाह पर तीरों की बारिश कर दी। अब हुआ ये कि हजरत अली रजी अल्लाह के लश्कर वाले ये समझे कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के साथियों ने उन पर हमला कर दिया है, और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के साथियों ने ख्याल किया कि हजरत अली रजी अल्लाह की फौज ने उन पर हमला कर दिया है। चुनाचे दोनों तरफ से तलवारें निकल आईं, मुसलमान आपस में टकरा गए। ऐसे में हजरत अली रजी अल्लाह पुकार पुकार कर कह रहे थे, लोगो रुक जाओ। हजरत आयशा भी लड़ाई रुकवाने के लिए अपने ऊंट पर बैठकर आगे तशरीफ लाईं, मगर इस वक्त तक जंग शुरू हो चुकी थी। इस जंग का नतीजा ये निकला कि बहुत से बड़े बड़े सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम और दूसरे नेक मुसलमान शहीद हो गए। ये अबद अल्लाह बिन सबा की बहुत बड़ी कामयाबी थी। उस जंग में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ऊंट पर सवार थीं, इसलिए ये वाकया जंग जमल के नाम से मशहूर हो गया। इस लड़ाई के बाद भी अब्दुल्लाह बिन सबा और इसके गिरोह ने अपना काम जारी रखा। इन्होंने मुसलमानों को दो नए फिरकों में तकसीम कर दिया। उनमें से एक फिरका तो वो था जो हजरत अली देने की मोहब्बत में बेइंतहा गुमराह हो गया और हजरत अली रजी अल्लाह को नाउज़ बालला खुदा कहने लगा था। हजरत अली रजी अल्लाह ने ऐसे कई आदमियों को गिरफ्तार करके इन्हें कत्ल कराया। दूसरा फिरका वो था जो हजरत अली रजी अल्लाह से नफरत करता था। फरान नफरत करने वालों के दो गिरोह थे। एक में वो लोग थे जो हजरत अली रजी अल्लाह से नफरत तो करते थे मगर इन्हें काफिर नहीं कहते थे, बस इन्हें बुरा भला कहा करता था। ये लोग मरवानी या नासबी कहलाए। ये ज्यादातर शाम में रहते बसते थे। उनका दूसरा गिरोह वो था जिसके लोग हजरत अली वालला से इतनी नफरत करते थे कि इन्हें नूज़ बालला काफिर और मशरिक करार देते थे, और जो इन्हें नेक और आदिल मानता था उसे भी काफिर कहते थे और उसे कत्ल करना जरूरी समझते थे। ये लोग ज्यादातर इराक में थे और इन्हें खारजी कहा जाता था। उनके अकायद भी बिल्कुल गलत थे।
हजरत अली रजी अल्लाह के दूर में इन लोगों ने बड़ा फसाद मचाया और बेशुमार बेगुनाह लोगों को कत्ल किया। गलत फहमियों के इस माहौल के बाइस हजरत अली रजी अल्लाह और हजरत अमीर मावी रजी अल्लाह के दरमियान इख्तिलाफ बढ़ता गया और सुलह की कोई सूरत ना रही। दोनों तरफ से सिपाही जुमा किए गए और सिफीन के मकाम पर दोनों लश्कर जुमा हुए। अगरचा दोनों तरफ की क़यादत में बड़े बड़े सहाबा थे और सिपाहियों में हजारों ताबईन थे जो नेक नियति के साथ एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने पर मजबूर हुए थे, मगर इन्हीं में अब्दुल्लाह बिन सबा के एजेंट भी खले मिले हुए थे जिन्होंने मामले को ज्यादा खराब करने में कोई कसर न छोड़ी और सुलह के तमाम इम्कानात को खत्म करने की भरपूर कोशिश की। नतीजा ये निकला कि एक बड़ी जंग छिड़ गई जिसमें हजारों मुसलमान शहीद हुए। सबाइयों के बहकाने में आकर खौरज ने हजरत अली रजी अल्लाह की मुखालफत शुरू कर दी और आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह इन्हीं लोगों के हाथों शहीद हुए। अब्दुल्लाह बिन सबा का अंजाम किया हवा, उसके बारे में दो रिवायतें हैं। अल्लामा इब्न हज़्म रहमा अल्लाह ने अल-मलल वाल-नहल में बताया है कि वो हजरत अली रजी अल्लाह की वफात के ज़माने यानी 40 दो चश्मीहे तक जिंदा था। हजरत अली रजी अल्लाह की वफात के कुछ अरसे बाद 40 दो चश्मीहे में वो जहन्नम रसीद हुआ, जबकि बाज़ मुअर्रिखीन के ख्याल के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह ने अपनी जिंदगी ही में उसे जिंदा जला दिया था। चारों खुलफाए राशिदीन के बाद अबद अल्लाह बिन सबा की पार्टी का काम और ज्यादा आसान हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह के बाद खिलाफत हजरत हुस्न रजी अल्लाह को मिली, लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई कि शाम और मिस्र के इस्लामी इलाकों में हजरत अमीर मावी उनकी हुकूमत थी और मक्का, मदीना और हिजाज में हजरत हुस्न रजी अल्लाह की। अब्दुल्लाह बिन सबा के पैरोकारों ने उन दोनों को भी लड़ाने की कोशिश की, लेकिन हजरत हुस्न अल्लाह ने हजरत अमीर मावी पेन के हक में खिलाफत छोड़ दी। इन्होंने सिर्फ 6 माह तक खिलाफत संभाली, फिर खिलाफत अमीर मावी दिन को सौंप दी ताकि साजिशी अनासिर मुसलमानों को मजीद ना लड़ सकें। इस तरह आलम इस्लाम में फिर से मजबूती का दौर आया। हजरत अमीर मावी ने जबरदस्त सियासतदान और रोब-वाव दबदबे वाले आदमी थे। उनके 21 साला दूर में अब्दुल्लाह बिन सबा के परूकारों को कुछ करने का मौका ना मिला। रजब 60 हिजरी में हजरत अमीर मावी पेन ने वफात पाई तो इब्न सबा के लोग एक बार फिर हरकत में आ गए। इन्होंने खुशियां मनाई, मिठाइयां तकसीम की। अफसोस, यही जहालत की रस्म अब मुसलमान भी मनाते हैं, जिसको कोंडे कहा जाता है। अमीर मावी रजी अल्लाह के बेटे यजीद के दूर में बहाई गिरोह फिर हरकत में आ गया। एक तरफ उनकी साजिशों और दूसरी तरफ यजीद की नालायकी और इसके गवर्नरों की सख्त मिजाजी और संग दिल्ली के बाइस सानिहा करबला पेश आया। हजरत हसीन ने उनके अहल खाना, रिश्तेदारों और साथियों को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। गौर किया जाए तो अबद अल्लाह बिन सबा उम्मत मुस्लिमा के हक में अबद अल्लाह बिन अबी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि अब्दुल्लाह बिन अबी की साजिशों के बारे में अल्लाह ताला वही के जरिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबरदार कर देते थे, इसलिए इसकी अक्सर साजिशें नाकाम हो जाती थीं। मगर अबद अल्लाह बिन सबा की साजिशों ने मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया, फिरका बंदियों के नासूर में मुब्तला कर दिया और आज तक इसका इलाज नहीं हो सका।